परिवेश में हम अपने बच्चों को वो बाउंड्रीज दे सकें। Defining boundaries, I believe, is the most difficult part of parenting. And whenever I look at grandparents, I look at them with awe. I look at them, I don't know how you people did such a wonderful job with us. Today, most of us are struggling. Most of us are asking questions. And that is why grandparents, it's an appeal from the school and from all the educationists who are seeing what is happening from 4 years to practically 24 years. That is the spectrum I deal with when I deal with children. It has always been a concern for me that जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम अपने घर में अपने दादा दादी नाना नानी से सीख सकते हैं, वो हमसे छूटती क्यों जा रही है। कहीं ना कहीं ये ग्रैंड पेरेंट्स डे हमारा साल में एक प्रयास है कि हम इन चीज़ों को छूटने ना दें। आपके बच्चे को मैनेजमेंट कॉलेज में जाके इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपने घर में इन रिश्तों, रोल्स और इमोशंस को महसूस कर सके और देख सके। थैंक यू। एंड दिस इज व्हाट द हेरिटेज स्कूल always says. You are an asset. You are precious. You are extremely valuable for us. And we keep talking to our children. And my challenge is that should we have a grandparents' day when children are even more grown up and have activities for them to see कि जो आज आपको बहुत मुश्किल लगता है वो आपके ही घर में किसी ने बहुत सरलता से किया है और आपसे बहुत कम रिसोर्सेज में किया है। Inspirational stories are right there in our own houses, which we are not learning. And I would request parents who are here, anything which is as small as you might think of it, but if you have parents who have achieved success, more than achieving success, they have done something where there was a bad period in their life and they have bounced back. Write to us. When I do my life skill sessions, I would like to talk about you, rather than only talking about people who our children have seen only in photographs. इसीलिए शायद कहीं बच्चों के लिए थोड़े दिन में सवाल हो जाएगा, was there really somebody like Gandhi? Because to understand tolerance, it's becoming difficult for our children. To understand respect, it is becoming difficult for our children. And the highest order of respect is, if it starts with you, today they will respect you, tomorrow they will respect people around them. And later in life, when they grow up, they'll respect their own selves. And they'll become fully functional human beings. Then only our education will be complete. And that is why all these beautiful lines which you heard your children say, let me once again reassure all my young parents here and the grandparents. Emotional bonding, that support, that hugging, that touch, it's very important for emotional development of our children. हम में से कुछ कहीं इसको गलत समझ रहे हैं कि मैम दिस इज पैम्परिंग। मैम, if we give too much love to a child, he gets pampered. Let me tell you, friends, too much of unconditional love given to children below 4 to 5 years provides them a very, very rich resource in life, that later on in life when they will have any kinds of a problem, they will bounce back. Because this is the developmental stage for children to develop trust. आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा है 2 साल 2.5 साल का, जैसे ही घर से कोई बाहर निकलता है बच्चा रोता है कि मैं भी जाऊंगा, होता है। और क्या होता है, चाचा मामा बुआ जो भी घर में है वो उस बच्चे को ले जाता है, अच्छा चल, कोई उसको स्कूटर पे बिठा के ले गया, कोई कार में ले गया, कहता चल तू घूम गया। वो 1.5 साल 1.25 साल का बच्चा बाहर जाता है, जो भी उसको लेके गया है वो अपने काम में व्यस्त है, वो फोन पे बात कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। आप देखिए, ये नन्हा सा बच्चा अपना कुछ करता रहता है अपनी दुनिया में। अचानक जोर से आवाज होगी या कोई व्हीकल पास करी, आपने देखा वो बच्चा क्या करता है? वो जहां भी है वो तुरंत हट जाता है। He comes close to you. Have you seen that? बहुत बार आप देखेंगे
कि जो भी उसके साथ है, अगर दादी साथ है, बुआ साथ है, मम्मा साथ है, तो वो तुरंत उसका पल्ला या दुपट्टा पकड़ लेता है। टच इज अ लैंग्वेज ऑफ इमोशन एंड टच इज अ लैंग्वेज ऑफ ट्रस्ट। सिर्फ उस पकड़ने से बच्चे को लगता है मैं सेफ हूं। और आप देखिए कई बार उसके लिए किसी को साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा आपके करीब आता है, हम एक हाथ इधर रख लेते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। आप देखिए बच्चा बिल्कुल कंफर्टेड रहता है, वो जरा भी परेशान नहीं होता। ये बात और है कि आजकल नए नए जमाने में कई बार ऐसा भी होने लगा है कि वो बच्चा मम्मी के करीब आता है और पकड़ लेता है और मम्मी कहती है छोड़, सीधे करो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो, ठीक से इंग्लिश में नाम बताओ, सीधे खड़े हो, छोड़ो मेरा पल्ला। That's not making children independent. Independence is a huge sense of trust from which a child operates. आपने देखा कितने नन्हे मुन्ने यहाँ थे और मैं हर बार उनको देख के यही सोचती हूँ कि मैं जब उस उम्र की थी, मैं सवाल ही नहीं है कि स्टेज पर चढ़ सकती थी। हमने वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं था। पर आज हमारी ये स्मार्टर जनरेशन, they are daredevil, they take risks, they are ready to come forward, they are not afraid. And it is what we have to understand and nurture. We have to understand initial 5 years of life is all about trusting, is all about giving a lot of unconditional acceptance to children. जितना आप ये कर पाएंगे, आप उनको उतना बेहतर डिसिप्लिन कर पाएंगे. You need to touch a child and tell him, I know you are very good, and that is why you will not do this. And when grandparents and parents do that together, the child never has to go out of the house to be disciplined by anybody else. He knows, and he's the child who comes in the school and tells, ma'am, you know, my mummy also says this. Because mummies get a lot of validation. आपके घर में हर दिन होता है, बच्चा कुछ करता है, मम्मी डांटती है, नहीं प्राणा, डोंट डू दिस। बच्चा फिर जाके दादी के सामने करता है। अगर दादी भी बड़ा कर देती है तो बच्चे को लगता है कि मम्मी ठीक ही कह रही। अगर दादी कहती है तो यही कूद, बाहर मत कूदना नहीं तो पिटेगा। Then what is the message the child gets? मम्मी में कुछ प्रॉब्लम है। दादी बहुत अच्छी है, जो करना। What the child does? उसके जितने ट्रेजर्स है, उसकी जितनी चीजें हैं जहाँ he wants to be himself, वो सारा इकट्ठा करके दादी के कमरे में लाता है। और ये मैं आपसे दिल से कह रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत दिन और बहुत सारी वो रातें जब मुझे वो करना होता था जो मेरा मन है, अपनी दादी के साथ गुजारे हैं। पूरे एग्जाम मैं दादी के ही रूम में रहती थी, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आई यूज्ड टू गेट वेरी नर्वस ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन। और जब मैं रोती थी तो माई मदर बोलते कि मेरे से बिल्कुल तुम्हारा ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। दादी के रूम में जाके रोती थी तो कहती थी, मत रो, तुम जो पढ़ी हो वही आएगा, जो तुमको नहीं आता है वो नहीं आएगा, तुम मत रो, तुम सो जाओ, सवेरे उठो तो तुमको याद आ जाएगा। And friends, I'll never forget it. That is my strength today. When I talk to people, I think that is the strength given by my grandparents, that I operate from belief and not from doubt. Because I would sleep at 12 o'clock and tell her, मुझे 3 बजे जगा दीजिएगा, अभी बहुत रिवाइज करना है। And my grandmother would sit from 12 to 3 कि ऐसा ना हो 3:15 बज जाए, ये फिर रोने लगेगी कि मेरा छूट गया है दादी, मेरा रिवाइज नहीं हुआ। She would sit there and wake me up, and my mother would go off and sleep happily, knowing that there is no other person who would care for me better than my granny. And friends, this is what I mean when I say grand keys that bond. बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए बाकी सब कुछ आप दे रहे हैं, अच्छा स्कूल दे रहे हैं, उनको अच्छी परवरिश दे रहे हैं, ऐसा ना हो ये ग्रैंड कीज टू सक्सेस हमसे कहीं छूट जाए। बिकॉज रेजिलियंस, पेशेंस, टॉलरेंस, ability to tolerate that there are going to be all kinds of people in life who will be better than you. When you have grandparents, they teach you that. और शायद बहुत से grandparents को एहसास भी नहीं होता है कि आप कितने प्रेशियस और कितने वैल्यूएबल हैं। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन रिश्तों को वापस स्ट्रेंथन करें।
इनको छूटने नहीं दें। Some of the things which I would love if grandparents can do it and parents can provide the opportunity for them to do. हम में से कितने लोगों ने अपने ग्रैंडचाइल्ड के साथ, स्पेशली जो क्लास 5 के बच्चे हैं, आपने अपने बच्चे के साथ फैमिली ट्री बनाई है? आप में से कितने लोगों ने बच्चे के इस सवाल का जवाब दिया है, दादी मैं कैसे पैदा हुआ था? बहुत रिसेंटली मैंने देखा एक बच्चे ने अपनी दादी से पूछा, मैं कैसे पैदा हुआ था? दादी ने कहा, मुझे नहीं पता, अपने पापा से पूछो। बच्चा पापा के पास गया, उसने कहा, पापा मैं कैसे पैदा हुआ था? पापा ने कहा, मुझे यही नहीं पता मैं कैसे पैदा हुआ था, तो कैसे बताओ तुम कैसे पैदा हुए थे? तो बच्चे ने कहा, अच्छा मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ। उसने कहा, अच्छा पापा आप कैसे पैदा हुए थे? उसने कहा, जाओ दादी से पूछो। एंड द सन केम बैक टू दादी एंड ही सेड, पापा को नहीं पता है, उनको तो यही नहीं पता कि वो कैसे पैदा हुए थे। उन्होंने बोला है आपसे पूछो। A very simple question, but a question which connects us. Children and their origin will always be you. जैसे हम कहते हैं, पेड़ उतने ही मजबूत होते हैं जितनी उनकी जड़ें मजबूत हैं, और बच्चों की जड़ें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और अगर ग्रैंड पेरेंट्स उनको फर्दर बता सकें इन एक्टिविटीज से, छुट्टियों में, कि चलो हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, मेरे पापा कौन थे और मेरे पापा के पापा कौन थे। These are the kind of things which will give your children a lot of strength. That's values. Then your child, the next time, is tempted to do something wrong. He operates, how could I do something like this? I belong to this family and this is not my culture, this is not my tradition.